Good evening, all of you. Welcome back to Ansarkari. So today we are taking up the questions from polity for paper 2 from the year 2022. The first question is right of movement and residence throughout the territory of India. They are freely available to the Indian citizens, but these are not absolute. So you have to comment. So firstly, I thought about a little broader introduction. So I wrote that fundamental rights, they have been guaranteed to the people residing in India to fulfill their personal and individual interests, but at the same time, reasonable restrictions, they ensure that fundamental rights, they don't become supreme over the national interest. So basically, in order to regulate that thing, we have reasonable restrictions. So similarly, the right which is guaranteed under Article 19 of the Constitution, that is also subjected to reasonable restrictions. So here we're talking about right to movement and residence. So the first reasonable restriction is restrictions of the grounds of security. So this implies that citizens, they cannot move freely to border areas because of, again, there is high vulnerability in those regions. Then basically through an example, I introduced the second and the third reasonable restriction, which is I gave an example of the inner line permit, which is there in the northeastern states. So that also restricts the movement due to the interest of the scheduled tribes and maintaining public order. So through this, I brought the three reasonable restrictions which are there. Then I further explained through other examples. So here, continuing with the same example, I wrote that fear of changes in the demography of the state, it led to the introduction of such a system of inner line permit, and that was to ensure the safety of rights of the residents to jobs and cultural preservation and environment conservation. So likewise, the second example is about the Andaman and Nicobar Islands. So they are also inhabited by tribes like Sentinelese. So their lack of interaction with the outside world, it sometimes results in attacks to the people who are trying to visit such areas. So that is also one of the reasons. And then to maintain public order in situations like lockdowns, curfews, ethnic violence, Section 144, that is used to restrict the large gatherings. And this was also recently witnessed in ethnic violence in Manipur. So therefore, reasonable restrictions, they are imposed to take care of the interest of society as a whole. So this is the complete answer. कौशिक। हाँ, आपने बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर दिया, आर्टिकल 19, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, इनर लाइन परमिट। मैंने प्रवेश का आंसर पढ़ा था, उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था राइट टू लाइफ एनवायरनमेंट वाला, जो वो एस्पेक्ट मिसिंग, उसके एग्जांपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और अपने अंडमान निकोबार सेंथलेस, इनर लाइन परमिट, कर्फ्यू, इसमें आप थोड़ा हाईलाइट करते जो तीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो थे इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट्स हैं। कॉन्टेक्स्ट में मैंने थोड़ा सोचा कि एग्जांपल्स हाँ। क्या हो सकते हैं, तो वो मैंने एक मैं बताता हूँ मानसी, आपने क्या नहीं लिखा। एक आपने ये नहीं लिखा कि किस तरीके से जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ कम्युनिटीज हमारे यहाँ मिलती है उनको भी मतलब रोका जाता है, उनका आर्टिकल 19 जो है रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे आप बताते प्रोस्टिट्यूट्स का, वो हर जगह नहीं जा सकते, मतलब दे आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन सर्टेन एरियाज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मोरालिटी, वो मिसिंग है। दूसरा जो औशिक ने बताया कि एनवायरनमेंट, आप बताते हैं कि किस तरीके से नेशनल पार्क्स वगैरह जो है वहाँ अलाउड नहीं होता है। उसके बाद आप बताते हैं कि कुछ जैसे कि आपने कोशिश की है यहाँ पर कि ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटीज में, तो बॉर्डर एरियाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ग्राउंड मतलब जच नहीं रहा है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज पे मतलब हाईली वल्नरेबल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं प्रवेश कि ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी इन द मतलब रीजन लाइक जम्मू कश्मीर हो गया या फिर आपकी मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां तो मतलब क्योंकि कमी क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि मतलब क्वेश्चन का मतलब बेसिक टेक्स्ट है, जहां आप जा सकते हैं वहां भी आपको रोका जाएगा। बॉर्डर एरिया पे तो आप जा ही नहीं सकते, तो आपको रोकेंगे ही क्यों? मतलब फिर तो आपको रोकना फिर तो रोकेंगे ही। नॉर्मल एरियाज में आपको रोका जा रहा है, बॉर्डर एरियाज पे तो आपको गोली मार देंगे। बॉर्डर एरियाज पे तो आप जा ही नहीं सकते। मतलब ठीक है, वो आपको पॉइंट है, मतलब प्रवेश यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रीजनेबल रेसिडेंस और मूवमेंट दोनों। हाँ,
एक मतलब सिर्फ और रेजिडेंस सिर्फ का कहीं मूवमेंट नहीं भी है। हाँ रेजिडेंस का कहीं भी थोड़ा जिक्र नहीं है कि किस तरीके से हिली स्टेट्स जो होते हैं वहां पर आप रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप जैसे हिमाचल में अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। उत्तराखंड में है कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आप रेजिडेंस कर सकते हो, उसके लिए भी आपको डोमिसाइल चाहिए। तो वो हम्म। थोड़ा चीजें हाँ, मिसिंग है। वो रेजिडेंस वाली चीज मिसिंग है। और मेरे को एक पॉइंट लेके आना है, जो आपने हेल्थ के ग्राउंड्स पे, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अंडर द राइट टू हाँ फ्रीडम ऑफ हाँ हाँ मूवमेंट हाँ रेजिडेंस? वो है। है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन वाज, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज्ड द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? तो तीन एलिमेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिए। So I started with कि decentralization of power, it is an indication of strengthening of cooperative federalism in the country. So India में मैंने मतलब थोड़ा as an introduction connect करने के लिए चीजें मैं एक लेके, समय बता दिया। हाँ हाँ, अच्छी कि बात। फॉर्मल मैनर में इस टाइम पीरियड में इसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। सो इट मेड द गवर्नेंस रीचिंग द लास्ट माइल, इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ईच सिटीजन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। However, real power that still existed in the hands of state governments, so they control the devolution of subjects. So this, like somewhere, it made the local bodies less effective. Moving on to the next thing, इसमें I talked about women empowerment, reservation का criteria है. So this was a watershed movement for them, but issues of Sarpanchpati that started cropping up, and this somewhere failed in bringing the true spirit into actualization. Next element is about the periodicity of the local body elections. They have been disrupted across states, where states, they are reluctant to share power and resources with them. So same thing, it is witnessed even in case of financial devolution also. So this has also affected the development projects at the local level. And at the same time, we can also say, like, यहाँ पे थोड़ा मैं positive चीजें highlight करने की कोशिश कर रही हूँ कि all these factors combined, they have somewhere contributed to awareness generation about the people's rights, which was found missing earlier, and this has led to active and responsible citizens. So of late, we have several initiatives, I've mentioned them. So that has also, in a way, furthered good governance and minimum government, and that has changed the local landscape immensely. So that's how I've ended it. पहले इस क्वेश्चन में अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा इम्फेसाइज ये कर दिया गया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्वेश्चन ने पूछा था डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसने ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया या चेंज किया। Change तो किया, नहीं, पहली इसमें बात, क्वेश्चन ने ऐसे बताया कि उसने बता दिया, स्टेटमेंट दे दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ इंडिया में, वो चेंज किया है गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट लेवल। कहाँ तक आप अग्री करते हैं? कि कितना चेंज हो पाया है। हाँ कितना हुआ है, कितना मैंने अग्री करते हैं आप? ठीक है, पहले लिखा कि ठीक क्या है, तो वही मैं बोल हाँ, रहा हूँ। तो मैंने इंटेंट। आपने स्टार्टिंग में बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मतलब क्या है, मतलब कैसे हुआ। ठीक है, हाँ, कैसे उसके हुआ। बाद वेल आपने वही दिक्कत है उशिक, मैं वही बोल हम्म, रहा हूँ। हम्म, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो बेसिकली पंचायत ग्रास रूट लेवल को पावर देने की बात होती है। हाँ, जो आप बात कर रहे हो वो ये है कि सेंटर स्टेट की आपने बात की है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लिख करके। नहीं, सेंटर स्टेट का कहाँ से एलिमेंट आया? मैं तो लोकल बॉडी आपने ये जो बात बोली कहाँ कि पे कह रहे हो? स्ट्रेंथन कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, अगर यहाँ पर बात होती कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस में किस तरीके से मतलब इम्प्रूवमेंट आई है, तो हम बात बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक तो टॉप हायरार्की, यानी हमारा जो सेंटर स्टेट्स है और नीचे जो एक हमारा हो गया सेंटर स्टेट्स और एक हो गई हमारे ग्रास रूट लेवल की गवर्नेंस बॉडीज जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, उन तो दोनों वो, के बीच में बात करने की बात की गई थी, ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में। तो तो मुझे सेंटर ऐसा स्टेट लगता है को ये मैंने कोई इंट्रोडक्शन मेंशन ही थोड़ा नहीं किया। आप जो चीज बोल रहे हो वो मेरे हिसाब प्रवेश सिर्फ से बोल गलत रहे इंट्रोडक्शन में, है। हाँ, इंट्रोडक्शन में ही मैं, बाकी फिर क्योंकि मैंने यहीं पे ये टर्म मेंशन करी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली, तो उनको लग रहा है कि मैं सेंटर और स्टेट की बात कर रही हूँ। तो आप खाली हाँ, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली भी तो लोकल लेवल की बात नहीं कर सकते। उसी की वजह से तो मैं मेंशन कर रही हूँ कि मतलब कितना चेंज हो पाया गवर्नेंस लेवल में, क्योंकि कोऑपरेटिवली चीजें कैसे फंक्शन कर रही है, उस एरिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर मैंने आंसर लिखा ना। आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला एलिमेंट नहीं आ सकते हैं, या वो गलत नहीं, है मैं वो उस बात नहीं कह रहा कॉन्टेक्स्ट। हूँ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो वर्ड है वो तब यूज किया जाता है जब सेंटर और स्टेट के बीच में कंपैरिजन की बात हो। यहाँ पर बात हो रही है ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस, तो कोऑपरेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दे हैव टू डिमांड
there is no need of federalism there. That is what I'm saying. नहीं इस प्रवेश आके देखते हैं वो हाँ बता दिया आपने, उसका आगे देखते हैं कि वो क्या पॉइंट लेके आई। तो हम जो मुझे अच्छा लगा एक पॉइंट जो पंचायत सरपंच पति, तो ये आर्गुमेंट था कि आज भी सरपंच पति के कारण वैसा हो नहीं पा रहा, मतलब पार्टिसिपेशन नहीं हो पा हाँ रहा मैंने वुमेन का कोशिश यही करी है एट हर ग्रासरूट पॉइंट लेवल। में हाँ ये लेके आने की कि जो हमने अच्छा सोचा था फिर उसमें थोड़े बहुत क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं। मतलब सारा तो आप फिर वही अच्छी अच्छी बातें भी नहीं कर तो सकते। इसमें हाँ, तो इसमें बस मुझे एक डाउट है कि आप सिर्फ इसको फिर अलग तोड़े तोड़े क्यों नहीं विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे, पहला बता देते विमेन का ऐसे टाइप्स दिखने में आसानी हो जाए। वो मैंने आपने फिर लिखा है? पॉइंट वाइज नहीं हाँ किया मैंने, वो मतलब मैं फ्लो में स्टार्ट किया था तो मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखा, मतलब एक फ्लो इंश्योर करने के लिए, क्योंकि फिर हर एक आंसर में आप पॉइंट्स भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए तो मैंने वो नहीं लिखा पॉइंट में। ठीक। बाकी और कोई पॉइंट वैसे ऐड करना हो कुछ मिसिंग है? बाकी आपने जो आखिरी में जो पॉइंट दिए ना मानसी, मतलब जैसे ग्राम न्यायालय, भारत नेट, तो ये हाँ अच्छी मतलब एग्जांपल्स आपने दिए हैं, लेकिन कंक्लूजन में इतने सारे एग्जांपल्स, एक तो थोड़ा ये है, और दूसरा ये कि मतलब क्वेश्चन ने ना ये बोला था कि किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कितनी एक्सटेंट तक चीजें हुई हैं। तो हम्म आपने मतलब 2 या 3 पहलुओं पे ही बात करी है कि जैसे वुमेन की आपने बात की, उसके बाद आपने ये नहीं बताया कि किस तरीके से ग्रास रूट लेवल में क्या क्या और सारी चीजें हुई हैं। और सारी जैसे कि मैं वही पूछ रही हूँ कि और क्या वो क्या मिसिंग है वो मैं पॉइंट। फर्दर आंसर में आपको मतलब दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट फिर एक ये चीज भी रहती है माइंड में कि आप सब कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब आर्गुमेंट छोटा होना चाहिए, हाँ ये आर्ग्यूमेंट, मुझे भी लग रहा था, हाँ मतलब छोटा सब्सटैंटिव थोड़ा तो इतना तो प्रिसाइज। करना चाहिए कि समझ में आ जाए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। चलो देखेंगे ठीक। आगे इसको समझेंगे प्रवेश को इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ था कि राइट ऑफ मूवमेंट, ये क्वेश्चन है, हम्म तो मैंने बता दिया अंडर आर्टिकल 19 302 307 इसमें राइट टू मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल सिटीजन है, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर लिमिटेड अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने बता दिया 4 पॉइंट लेकर के कैसे कैसे है, बेस्ड ऑन पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ट्राइबल राइट्स एंड लैंड एलिनेशन, एग्जाम्पल CNT, वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न लद्दाख JNK, ट्राइबल कस्टमरी राइट टू बी सिक्योर्ड ILP। इसको मैंने फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया कि CNT में इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस टू इंक्लूड ट्राइबल्स एज द स्टेक होल्डर, of a security purpose में it is very important so that the sovereignty integrity of state is maintained. Sabariwala and Jagannath Yatra, both example of religious movement based on massive crowd participation. Necessary approval from a police and local administration ensures their safety. ILP से होता है कि local tribes से customer secure होता है. Thus, democratic India like in democratic country like India, checks and balances help to put check on exploitation of rights available to citizen. तो ये 4 एग्जाम्पल मुझे दिमाग में आया था, तो उसको ये कल्चर वाला मेरे मैंने माइंड में नहीं आया था, बट फिर मैंने ये लिखा नहीं, मतलब कल्चरल एंगल से भी एक ही पॉइंट भी हो सकता था। तो मुझे मेरे दिमाग में इन्वायरमेंट नहीं आया था जो प्रवेश का मैंने पढ़ के नहीं, मुझे ओशिक वो आपका कैसे। ये जो सबरी वाला एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा मतलब मुझे मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा है यहाँ पर, मतलब हाँ ठीक, स्पेसिफिक हो जगन्नाथ गया। यात्रा बोल सकते हैं क्योंकि वो हाँ, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो फेस्टिवल्स गए मतलब टाइम पे, हाँ इसमें एग्जाम्पल लेके वो बताना था कि मतलब आप जैसे पॉइंट्स लेके कैसे। आए आपने डायरेक्ट एग्जांपल्स डाले, तो यहाँ पे आप ब्रॉडर हेडिंग लिख सकते थे, मतलब स्टार्टिंग में कल्चर के हाँ पर्सपेक्टिव से फेस्टिवल्स जो हमारे हैं, ऐसे आ सकता था। हाँ ठीक, और कंक्लूजन क्या लिखा है आपने, 10 इन डेमोक्रेटिक कि कंट्री। चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, एक्सप्लोटेशन ऑफ राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन, जो ज्यादा एक्सेस यूज नहीं कर रहा अपना राइट्स, चेक्स एंड ठीक है। बैलेंसेस। हम्म टू व्हाट एक्सटेंट ये मैंने इसमें लिखा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंक्लूड्स, तो मैंने 3 बता दिया ऐसे होता है। 6 शेड्यूल पैसा, इट हैज चेंज द गवर्नेंस ऑफ ग्रासरूट्स लेवल बाई, तो मैंने बाई समझा दिया कि इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी SC/ST, encouraging people's participation in governance by social auditing, filing RTI, using commerce service center। फिर नीचे में फॉर्मुलेटिंग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान शोकेसिंग बॉटम्स अप अप्रोच, large smile connectivity with respect to government scheme like SBM, PMG. However, still Gram Panchayat faces several issues like shortage of fund, interference from executive body, further digital divide among people, and local political will have not utilized the full potential of decentralization. For that,
there should be a learning from Kerala model of panchayat and implementing 15 finance commission on tax division. तभी जाकर के डिसेंट्रलाइजेशन टैक्स ये आइडिया। ये अच्छा है आपका आंसर। मैं ये बोलूंगी कि आपने अप्रोच ये लिया कि आपने पहले सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए, उसके बाद आप नेगेटिव लेके आए, बट इसकी वजह से मैं बोलूंगी कि कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है मेरे को आंसर में। बस मेरे को यही बोलना है। और बाकी आपने कंक्लूजन में यहाँ पे जैसे लर्निंग फ्रॉम द केरला मॉडल, क्या ये फिर मतलब ये हर फैक्ट स्टेट है, में वो मैं applicable हो ताकि सकता है, नहीं हो चेंज सकता। कर सकता हूँ, लेकिन ठीक। Implementing 15th Finance Commission recommendation, the tax devolution to the Gram Panchayat as way ahead. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे रिकमेंडेशन मेंशन कर देते, क्या किस चीज के बारे में उन्होंने बात करी, टैक्स डेवल्यूशन में क्या उनका रिकमेंडेशन था, वो मेंशन कर देते तो शायद ज्यादा इफेक्टिव रहता। बस मेरे को ये बोलना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट अब यहाँ पर decentralization मैंने थोड़ा सा नेगेटिव वाला एंगल नहीं ला पाया मैं आंसर में, तो पहले ही बता देता हूँ। तो मैंने शुरुआत की है कि इंसेप्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 73rd अमेंडमेंट 1992 seen as a manifestation of decentralization of power in Indian political landscape। इसके implications क्या हैं? बॉटम अप अप्रोच, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीजनल डिमांड्स सेंट्रलाइज्ड अपरेटस तक पहुंच जाती है पंचायत के माध्यम से। एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, एग्जाम्पल ग्राम सभा का, डायरेक्ट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिविकनेस आती है। वॉइस टू वॉइसलेस एंड मार्जिनलाइज्ड, एग्जाम्पल वुमेन, रिजर्वेशन मिली है, ट्राइबल्स, पीडब्ल्यूडी, दलित्स, इनको पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सेदारी मिलती है। इफेक्टिव एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, जो भी सेंटर स्टेट्स की स्कीम्स होती है उनका। एंड अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव जस्टिस मिलता है, क्योंकि जो पंचायत होती है पेकिनरी केसेस को डील कर लेती है। ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिव डिलीवरी हो जाती है सर्विसेज की। तो मैंने कंक्लूजन दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 कंसेप्चुअलाइज जो करता है विलेज पंचायत को, इसने प्रिवेंट किया है ओवर एंड एक्सेस सेंट्रलाइजेशन और सेव किया है गवर्नेंस को फ्रॉम बिकमिंग प्रेशर कुकर सिंड्रोम। तो मेरा नेगेटिव आने से थोड़ा रह गया है। कंप्लीटली रह गया। प्रेशर कुकर से मतलब क्या होता है? मतलब आपने अपना, आपका वो नहीं आ पाया ना मैं क्रिटिकली बता रहा हूँ उसमें कि आपने जो आर्गुमेंट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेजेस, वो बहुत अच्छा है। फ्रेजेस अच्छा है आपका, वॉइस टू वॉइसलेस, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव एंड, इसमें एक एग्जांपल जो है वो आप लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव जस्टिस बाई, इसमें आप एक एग्जांपल लेके आते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके, इफेक्टिव एंड डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ क्या, तो वो एग्जांपल बस लेके आते हैं, क्या क्या चीज एक डिलीवरी थोड़ा हुआ है। नेगेटिव, एक थोड़ा नेगेटिव और टोन हाँ, मैंने नहीं डाली फिर है, और एक इसमें एग्जांपल ही डाल आपने दिया। बोला कि डू यू अग्री, तो आप अग्री नहीं किया, आप अग्री कर दिए पूरा, लेकिन यहाँ डू यू अग्री नहीं पूछा, यहाँ बोला कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन। और ओपिनियन, हाँ, तो वो चीज एक्सटेंट तो आ बताना ही है नहीं इसमें। पाई। हाँ, आपका वो हाँ, नहीं आ पाया हाँ, टू व्हाट एक्सटेंट, ये एलिमेंट आ नहीं पाया आंसर में। जैसे इंट्रोडक्शन में आपने खाली 73rd आपने लिखा है कि द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चार्ज चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रोथ ग्रासरूट लेवल, कमेंट, ये एग्जांपल, ये आंसर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब हाँ, मतलब अर्बन टू की व्हाट body एक्सटेंट होला। भी हाँ, होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो मिसिंग है। वो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन में पंचायती राज लिख दिया और 73rd लिख दिया, वो अर्बन लोकल बॉडीज कंप्लीटली मिस कर दिया। तो एक ये चीज होगी, मतलब कलेक्टिवली लेके चलना है चीजों को। और मैं बोलूंगी थोड़ा जनरल पॉइंट्स आपने लिख दिए, क्योंकि फिर आपने बस यही लिखा है कि क्या क्या फायदे हुए हैं। अब आपका हाँ, एक्सटेंट वो मैं एग्री करता हूँ, वो मतलब मैं हाँ, नेगेटिव हाँ, हाँ, ला नहीं ठीक है, पाया, इस वो पे मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक। अब प्रेशर कुकर सिंड्रोम है क्या ये प्रवेश? बेसिकली सेंटर स्टेट की जो रिपोर्ट्स थी ना, ये अपनी एआरसी वगैरह और जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं, उनमें इसको यूज किया गया है कि जब ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है तो प्रेशर बन जाता है, मतलब पूरा जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो फट जाएगा अगर ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ओ, तो प्रेशर कुकर सिंड्रोम। अच्छा। हाँ, अच्छा है कौशिक, बट एक मतलब डाउट था मेरा हाँ कि जी। जो डिसेंट्रलाइजेशन की ये बोल रहे हैं, वो बेसिकली हम सत्ता के उसी में देखेंगे, पावर के उसमें जुडिशरी को, या फिर जो अदर जो एरिया आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी ला ऊपर सकते कर हैं? रहे मानसी, एक बार क्वेश्चन मतलब दिखाई इसमें। क्वेश्चन है कि मतलब ऐसे इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन ओपिनियन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट लेवल। तो गवर्नेंस, अगर आप जुडिशरी को भी डालेंगे इसमें, हाँ, तो होगा, वो भी हाँ होगा, बेसिकली हो सारे ऐसा सकता है, मतलब एलिमेंट्स हाँ, होंगे। हो सकता है। हो सकता गवर्नेंस हाँ, है तो वो भी होगा, जस्टिस भी तो होता है जुडिशरी का हल्का सा जस्टिस। लेके आ जाए। हाँ, सही बोले। बेसिक
तो आप क्या बोलना चाह रहे हो सचिन, क्या आना चाहिए था एग्जैक्टली तो इसमें बताओ। नालसा का बात कर रहे हैं, वो लालसा का बात कर रहे हैं या लोकल फैमिली कोर्ट का जो लोकल बेसिकली डिसेंट्रलाइज। जैसे कि मतलब जुडिशरी ले अब लोक अदालत आ गई है, चल हाँ न्यायालय लोक आ अदालत। गए हैं, तो ठीक है, उनका भी एक तो पॉइंट लेके आ मतलब सकते थे। मैंने लिखा हाँ है हल्का सा, मतलब पर हाँ लगी हाँ क्या इस तरफ भी जा सकते थे। हाँ हाँ, जा सकते हैं। तो बाकी अच्छा है क्योंकि आपका। वहाँ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, लोकल बॉडी हाँ स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है, लिखा। पंचायत नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिक, हाँ मैंने आपके डिसेंट्रलाइजेशन आंसर में लिखा हुआ है भी, सर। हाँ यस आपके आंसर में देखा ठीक था, तो मैं हल्का सा मेंस लिखूंगा तो शायद जा सकती, मतलब ये था। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग की है कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सबसेक्शन डी पार्ट थर्ड में डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। फिर मैंने बताया लेकिन अदर राइट्स की तरह दिस आल्सो कैन नॉट बी एंजॉयड एब्सोल्युटली and comes with limited restrictions on certain grounds. Number one, preserving and maintaining the natural pristine and wildlife. Example मैंने दिया नेशनल पार्क्स का, जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कोर एरियाज में अलाउड नहीं होती. Number two, to protect the tribals anonymity and culture. Example of northeast, no human movement can take place in some areas. Third, to maintain the distinctiveness of geographical locations. Hilly states का example जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पर डोमिसाइल मतलब रिक्वायर होता है. फोर्थ दिया है टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ मोरालिटी. एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स जो कि completely prohibited होते हैं especially tribal areas में on the grounds of HIV, AIDS, etc. Fifth example है to uphold law and order, use of CRPC 144, 141 to prohibit citizen movement in certain areas to prevent the loss of life and property and maintain stability and lawfulness. Therefore, we may conclude then power corrupts and absolute power corrupts absolutely. That's why fundamental rights cannot be absolute and limited restrictions on them help state in doing governance as the responsible trustee of the citizen in their own endeavor. मैं बता रहा हूँ, आप करिए एक बार क्वेश्चन। तो आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या है मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट। पहला पॉइंट एक यूनिक था आपका, जो बहुत अच्छा बात है। फिर ट्राइबल मेंटेनिंग डिस्टिंक्शन, ये भी सही है, नीचे करे। ये जो पॉइंट है ना प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ ये टर्म लेके आते हैं। मतलब प्रोस्टिट्यूट जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से आते हैं। तो अगर ये जो आप लिखे हैं कि उससे प्रिवेंट हेल्थ इश्यू लाइक HIV एड्स, तो मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि उनके कारण होता है, तो वो थोड़ा गलत कनोटेशन में जाता वैसे है। ओशे के एग्जैक्टली हाँ लिखा हुआ है बुक्स में. अरे तो आप कॉपी पेस्ट थोड़ी करें। लेकिन, हाँ लेकिन फिर मत इसको मत लिखिए मेरे अनुसार। आप पूछ सकते हैं जैसे, लेकिन उससे ऐसा कुछ और लिख देते। बाकी ठीक है, टर्म नीचे भी सही है। जो फिर आप बोलना अपहोल्डिंग लॉ चाहते एंड हो। ऑर्डर, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ जो और बोलना ला चाहते हो हाँ डिफरेंट टर्म्स यूज करके आप बोल सकते थे। हाँ हाँ। तो और नीचे में लिखा हुआ है कंक्लूजन में आपने जो एक कमेंट लिखा है, एक कोटेशन लिखा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। तो ये क्या स्टेट से रिलेटेड है यहाँ पर? लेकिन बात हो रहा है दूसरा चीज, यहाँ राइट्स नहीं बात हो रहा है होते, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द या मूवमेंट। सिटीजन से रिलेटेड है ना हाँ उसे, मतलब हाँ, तो फंडामेंटल पावर राइट्स आर करप्ट जो है सोर्स ना, ऑफ ये पावर ऑफ बेसिकली पीपल आप ना. टारगेट कर सकते हैं स्टेट को से या फिर किसी और को। तो हाँ ये थोड़ा सा जज नहीं करा, नीचे वाला सही, गवर्नेंस नहीं, मैं रिस्पांसिबल मैं प्रेशर। मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ. ये जो हाँ मैंने हाँ हाँ। कोट यूज किया है, ये मैंने स्टेट के लिए नहीं, मैंने लोगों के लिए यूज किया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ पीपल. लेकिन राइट है, पावर तो अगर आपके पास जैसे स्टेट के पास किसी चीज की पावर है तो वो उसको यूज करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉपरली फिट हो रहा है। वही औशिक कह रहा है कि राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स आपको पावरफुल बनाती है, बट आप उसको कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो ऐसे। तो मतलब उस मेरे अनुसार प्रवेश, कि आप यहाँ पर नहीं भी लिखते चलता, मैं बता, समझ गया मैं. नीचे वाला भी सही। हाँ, लेकिन वो बैठ नहीं रहता, एकदम अच्छा वाला आंसर में नहीं बैठ रहा आपने जो नया जो। सचिन सचिन दिव्या आंचल कुछ. नहीं अच्छा लिख रखा, बाकी उसी जो करा वो देख सकते एक्सप्लेन कर दिए सचिन। हैं। ओके, ये था कि भारत के पूरे क्षेत्र में मूवमेंट और निवास का जो अधिकार है भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है, टिप्पणी करना है। तो आर्टिकल 19 स्वतंत्र मूवमेंट और निवास का अधिकार देता है, परंतु रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। उनका वर्णन 19(1) दे रहा स्वतंत्र मूवमेंट का, 19(1) ही दे रहा स्वतंत्र निवास का, लेकिन 19(5) इनके अधिकारों को साधारण जनता के हितों में अनुसूचित जनजाति और हितों के संरक्षण और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती। तो उन्होंने ग्राउंड दे रखे, उन्होंने ग्राउंड पे बात की कि जो अनुसूचित जनजाति उनके क्षेत्रों के कल्चर और जीवन शैली को संरक्षण में मदद मिलती है इससे।
जैसे त्रिपुरा और मिजोरम के जो कुछ गाँव हैं, उन्होंने अनुसूचित जनजाति गाँव की जीवन शैली को इस प्रकार संरक्षित किया गया जो स्टेट की डेमोग्राफी को बदलने से बचाने में मदद मिल सकती है हमें। इनसे अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी को इसी प्रकार संरक्षित किया गया। तो इससे स्पष्ट है कि इन अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकती है, परंतु थोड़ा सा नेगेटिव भी डाला। कई बार मानव अधिकार और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्ट्रिक्शंस का क्रिटिसिज्म कर चुकी है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगाई जा सकती है। ऐसे में मानव अधिकारों को देखते हुए सेफ गार्ड्स रखे जा सकते हैं। नीचे कंक्लूजन डाला है कि इस प्रकार पहली नजर में देखने पर लगता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है पुलिस सिपाही मतलब बेसिकली कांस्टेबल को टारगेट कर रहा था मैं, बट पुलिस सिपाही लिख के छोड़ पुलिस सिपाही के नजरिए से लगाए गए हैं, परंतु गहराई से देखने पर इनकी जरूरत महसूस होती है। ट्राइबल कल्चर को संरक्षित करना पब्लिक इंटरेस्ट में सेफ गार्ड के साथ लगाया जा सकता है। इसके पक्ष में लिखा। मानसी करना ऊपर। आपने जो जो दो पॉइंट बोला, पहला तो इसका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, आप उसको छोटा कर सकते थे। आपने डिटेल में समझाया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आया है, जो मेरे अनुसार ज्यादा जरूरत नहीं था। नीचे मानसी। इम्प्रूव करता हूँ इसको नेक्स्ट टाइम में थोड़ा हाँ, शॉर्ट। ये सही है कि आपने डेमोग्राफी का बताया और अनुसूचित जातियों जनजातियों के क्षेत्रों को बचाने के लिए बात की आपने। फिर इसमें हाँ और जी। भी पॉइंट आता, और भी इसमें आर्गुमेंट्स आता, सच एज एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ट्रेड और कल्चर, जो भी वो आप में मिसिंग है। और नीचे करें। डाल दो मैं नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ा लिख लेता हाँ 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 हाँ। और आपने जो क्रिटिसिज्म दिया है, वो भी आपने क्रिटिसिज्म ये कह के बताया है कि वो क्रिटिसिज्म एनजीओ करते हैं बस, मतलब हूँ। बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या है वो मैं बताया है। मतलब उसे मैं ये हल करना चाहूँ। मैं इसको ना अपने कंधे पे रख के नहीं चलाना चाहता था, इसलिए दूसरे के कंधे का सहारा लिया मैंने कि वो लोग ऐसा बोलते हैं तो हम थोड़ा सुधार कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं लिखता तो मेरी वर्डिंग हो जाती, इसलिए उनका नहीं तो जिक्र कर दिया। क्रिटिसिज्म आपको लिखने, मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं लिख सकते ना आप, बस बताए हाउ कि का जो क्वेश्चन में था वो जरूरत भी नहीं था, वहां पर पूछा था सिर्फ और सिर्फ कि ऐसा होता है, एब्सोल्यूट नहीं है बस। तो एब्सोल्यूट नहीं है वहां बता देते कहाँ कहाँ जगह एब्सोल्यूट नहीं है। वहां अगर बोलता क्रिटिकली एग्जामिन, तो आप बताते कि क्या क्या इशू है इसके अंदर, तो जरूरत बेसिकली कमेंट टाइप बोला उसने, आप मुझे लगा क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इसलिए नहीं। क्रिटिसाइज एब्सोल्यूट तो कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट तो होता भी नहीं ऐसे भी। अगर बोलता कि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ऐसा कुछ, तो आप क्रिटिसाइज करते। वहां पर तो बात कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी जा नहीं सकते, उसको बस आपको दर्शाना था अपना आंसर। ठीक है पकड़। मैं बोले बस ये मानसी। बोलूंगी कि एक तो इंट्रोडक्शन सबने कॉमन ही लिखा है, आर्टिकल 19 सबने इंट्रोडक्शन में यही लिखा है, और आंसर में डायमेंशंस मिसिंग है, बस यही बोलना है जो आपने हाईलाइट किया था औशिक। प्रवेश। हाँ यार वही है, लगभग वही बात है जो औशिक और मानसी ने कही। नीचे कर समझा दीजिए सचिन। आप ग्रामीण भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक बदल दिया। तो भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने आम जनमानस को सशक्त करते हुए हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव छोड़ा। उनका वर्णन करा नीचे। जैसे पंचायती राज है, ग्राम सशक्त बने, समस्याओं को जमीनी स्तर पर पंचायतों द्वारा हल किया गया। पंचायतों में ग्राम सभाओं द्वारा बजट के इस्तेमाल को लेकर चर्चा होती है, लोगों की शासन में भागीदारी बढ़ी। लेकिन इसके कुछ और पक्ष भी थे, जैसे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। इस तरह से नक्सलियों की आंख और कान एक तरह से उनसे छिन गए, क्योंकि लोग आ चुके हैं उसमें। सत्ता के विकेंद्रीकरण से नक्सलवाद जैसी समस्याओं को भी ग्रास रूट लेवल पर खत्म करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यायपालिका, लोक अदालतें, चल न्यायालय जैसे विकेंद्रीकरण के कारण आम लोगों के लिए न्याय सुगम बन गया है। निर्णय प्रक्रिया में तेजी और लोगों की भागीदारी में वृद्धि हुई। इकोनॉमी है, वहाँ विलेज इकोनॉमी का कंसेप्ट है, वो विकेंद्रीकरण का उदाहरण। गांव सशक्त बन रहे, शहरों का बढ़ना गांव की तरफ हो रहा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इम्प्लीमेंट में मदद मिलना, क्योंकि विकेंद्रीकरण के कारण जैसे कि सरपंच है तो उसकी देख रेख के लिए एक ग्राम सचिव भी, ऐसे में जो नई पोस्ट बनी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करना आसान बन गया हमारे लिए। कल्चर नेक्स्ट डाला, गांव अपने कल्चर को संरक्षित कर सकते हैं। जो सरपंच के रूप में एक नेता है
जिसकी जिम्मेदारी गांव के लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाना। तो गांव और सरकार के बीच कम्युनिकेशन गैप कम हो गया उससे। नेक्स्ट, फिर ये डाला लास्ट में, स्पष्ट है कि केंद्रीकरण भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश की जरूरत है, जहाँ शीर्ष नेतृत्व से दिशा निर्देश आने और इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। वहीं विकेंद्रीकरण के कारण इस गैप में कमी आई। ऊपर कर ले मानसी। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, मतलब सिंपल सरल भाषा में। फिर पंचायती राज में जो आपने क्रिटिक दिया है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ नक्सल के हिसाब से दिया, मतलब कि सिक्योरिटी पर्पज से। आप इसमें पॉलिटिक्स का विमेन, महिला और फिर बाकी जनजातियों या फिर SC ST उसका आप लिखा, मतलब आपने लाया नहीं इसमें तो कल्चर उनका में जिंदगी में क्या प्रभाव पड़े। और न्यायपालिका आपने एक नया डायमेंशन लिया है जो हमने नहीं देखा, न्यायपालिका मतलब में, मतलब कोर्ट, फैमिली कोर्ट, बाकी सब। फिर इकोनॉमी, तो आप जो इकोनॉमी कल्चर ऐसे आप तोड़ रहे हैं ना, जरूरत नहीं था इसको। उसे दिखाते हैं कि आप तोड़, आप डायरेक्टली लिखते कि एक विलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। लेकिन कहाँ तक आप अग्री करते, एक्सटेंड इसमें था वाली ना, वही मिसिंग है, कहाँ तक, क्रिटिकल। कहाँ तक लास्ट अग्री कर रहे ओशिक एक चीज जो तुमने बोली ना, उसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है कि नक्सल को किसने खत्म किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखो नक्सल को किसने खत्म किया। तो अगर पंचायत खत्म कर देती, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया। बेसिकली पंचायतों ने, जो वहाँ की ग्राम पंचायती आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, उन्होंने बहिष्कार किया, बायकॉट किया नक्सलिज्म का, क्योंकि वो खुद पावर में आ गए वहां पे। और इस तरह से एक तरह से टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन दिया उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ना उनको मुखबिर रहे वहां, ना आके नहीं, ना कान रहे, सुन नहीं सकते, बात उन तक नहीं जा रही। ये लिखना चाहा मैंने से कि इस तरह देखिए से ऐसी समस्याओं से भी सचिन, लड़ा जा सकता आपने जो इतना लंबा जो बताया ना, आप सिर्फ यही बताते कि पंचायत का योगदान नक्सली खत्म करने में बहुत ज्यादा था, ऐसे कुछ एक लाइन पर बता देते है। हाँ, सिर्फ। मतलब मैं शॉर्ट में कर हाँ सकता था जैसे, हाँ हाँ, शॉर्ट में कर देते, थोड़ा छोटा क्योंकि कर दूंगा इसमें कि सिक्योरिटी पर्पज का क्वेश्चन नहीं है ना कि आप जो एक्सप्लेन करें उसके पर्सपेक्टिव से। तो फिर मेरा हाँ यही ठीक है, सुधार कर सकते हैं, बट एक पॉइंट लगा तो लिख दिया बस, ये कोई नहीं, इम्प्रूव कर दो। न्यायपालिका वाला आपका डायमेंशन अच्छा था जो लाना चाहिए था। ठीक, अमन से बता दो। हो गया, मैंने बता दिया है साथ में बीच में कि थोड़ा जो क्रिटिकल एलिमेंट है वो मिसिंग है, बाकी थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। और जो पेज नंबर 2 पे पॉइंट्स है वो अच्छे हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है ये सारे। ये कहाँ तक अग्री किए वो नहीं हाँ, वही इसमें। वही कह रही हूँ मैं, क्रिटिकल जो एलिमेंट आना चाहिए था हाँ, व्हाट एक्सटेंट, वो थोड़ा लैकिंग है। मतलब चैलेंजेस आप नहीं लेके आए कि क्या प्रॉब्लम्स आई। बेसिकली ना मैं डिसेंट्रलाइजेशन से एग्री ज्यादा करता हूँ। ऐसा लगता है कि नीचे तक पावर जाती है, तो मुझे क्रिटिसिज्म नहीं दिखता, इसलिए नहीं तो फिर अच्छी। आप लिखते हैं ना, आप यहाँ लिखते हैं, हाँ आप करते हैं अग्री, वो भी चल सकता है, लेकिन आप लिखते हैं ना कि हम अग्री करते हैं, ऐसे टाइप कुछ। हाँ, तो एंड वो नेक्स्ट टाइम नहीं वो है, वर्ड में नहीं है, ऐसे हम लोग लिखे थे ना कि इट इज पॉजिटिव, हाउएवर देयर आर सम इश्यूज, तो ऐसा आप भी कुछ अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, या फिर कहाँ लेकिन तक आप अग्री करते हैं ये उस तो नहीं बोल सकते सचिन कि आपके हिसाब से कोई भी, मतलब आज के टाइम में फिर कोई चैलेंज ही नहीं है। आपको लग रहा है कि सब अच्छा कुछ नहीं है मानसी, थोड़ा। वो पर चैलेंज नहीं पूछा था, वो बोला था क्वेश्चन पे, अरे चैलेंज इन द सेंस क्वेश्चन मैं ऊपर वही था। कह रही हूँ कि मतलब हाँ हाँ। सचिन कह रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, आई एग्री विद ऑल दिस जो उसने लिखा हुआ है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है आज के टाइम में भी, मतलब ही फील्स की पंचायती राज जो जो लोकल बॉडी है सारी अच्छे से फंक्शन कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं कुछ चीजें बस क्रिटिकल डाली जा सकती थी, आप सही कह रहे हो। हम्म। तो बोलते कि कितना मैं एक्सटेंट, टू व्हाट क्रिटिकल एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, तो आपने सचिन बोल दिया मैं 100% करता हूँ। हाँ, तो ये मैं हाँ, कह ये रही लिख दिया बेसिकली, डिफरेंट मैंने हो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता था, सही हूँ। कह रहे हो। ठीक, मानसी। Chalo, that's all for today, and I hope we are clear with all the ideas that we've discussed today. And stay connected with us for more sessions.